मंजिल तो आयोजन हुआ है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई है और उसके बाद सबने अपना अपना परिचय कराया। गोवा एसएरएलएम पर हमने वीडियो देखा और कुछ लखपति दीदी ने अपनी कहानी भी हम सबको सुनाई। उसके बाद रमन वाधवा जी का सेशन भी हुआ। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का और उपस्थित सभी सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और औपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्री संजय गोयल जी, IAS सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट गोवा। Good morning, everybody. On behalf of Government of Goa, it's a proud privilege and pleasure for me to welcome all of you to this beautiful and serene state of Goa, abutting the Konkan coast. I hope your stay is comfortable, and with such a fine weather and monsoons of Goa, I am sure that you will be able to appreciate the beauty of Goa and this national conclave in next 2 to 3 days. I specifically welcome our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, under whose leadership all the flagship schemes of Government of India and Government of Goa are being very impressively implemented in the state. I welcome Ma'am Smriti Sharan ji, Joint Secretary, Ministry of Rural Development, who very gladly accepted the offer from State of Goa to host this Anubhuti National Conclave on Financial Inclusion. And thank you so much for giving us an opportunity to host all of you. I welcome Shri Sadanand Tanwade ji, our Honorable Member of Parliament from Rajya Sabha. Sir is always an inspiration and he actively participates in such programs of national level importance. Welcome to you. I welcome Dr. Monica, Director of Ministry of Rural Development, who is looking the financial inclusion part. I welcome all the senior officials from Ministry of Rural Development, all the state mission directors of state SRLMs, all CEOs, all senior officers, and my colleagues from various state governments and other autonomous organizations. It's really a privilege for us to host all of you, and I'm sure because as far as the state of Goa is concerned, we are committed to the overall economic and social upliftment of its people, and the Goa's track record and performance in rural development and creation of rural infrastructure, improving rural livelihood, social inclusion and financial inclusion is very impressive. If you see all the national social and economic indices, the state of Goa performs much better than national averages in most of these places. In SRLM, we have a network of more than 3,000 SLGs covering 43,000 members, and all the four subcomponents of SRLM, they have been very impressively implemented in the state of Goa, but I am sure that there are gaps everywhere, and with this national conclave on FI, we will be also able to learn from the experience of other states, and wherever we feel that there is a scope for improvement, we will always accept it and try to improve upon it. So once again, without much ado, I welcome all of you to this beautiful state, and I am sure that this conclave will help all of us, and we will go enricher and more informative about how to improve upon the scheme and for the which ultimately helps the betterment of people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर इस स्वागत भाषण के लिए। अतिथि देवो भव ये हमारी प्राचीन परंपरा है और हम इस परंपरा का अनुकरण बड़े प्यार से करते हैं। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। गोवा राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, आपका स्वागत मिराकी क्लस्टर लेवल फेडरेशन चेयरपर्सन श्रीमती राधिका सावंत करेंगी। ये जो प्यारे से फूल यहाँ पर आप देख सकोगे, ये हैंडमेड है और ब्यूटीफुली वोवन वुलन फ्लावर्स दिया।
Let's now welcome Joint Secretary, Deputy Secretary, Ministry of Rural Development, Dr. Monica, IPS, to share the objectives of this conclave. Dr. Monica ji. Thank you so much. Good morning, everyone. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, Honorable Member of Rajya Sabha, Shri Sadanand Seth Tanwade sir, respected Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Smriti Sharan ma'am, respected Secretary, Rural Development, Government of Goa, Sanjay Goyal sir, and dear participants. It's truly a privilege for me to stand here today in a room full of people who have contributed in a big way to bring in one of the biggest transformations in rural India. That is the financial inclusion under DANRL. Over the last decade, we have collectively helped reshape the whole landscape of financial landscape in rural India. We have moved from a time when a rural woman would see credit as a means of falling into debt trap, dependence on money lenders. Today, the rural women are very confidently leading the whole savings group. They're negotiating with bankers very confidently and they're investing in enterprises. This shift is not just about credit. It is about agency. It is about dignity. It is about opportunity. The fact that financial inclusion has ensured that the rural women are no more invisible to the rural economy. They are now active participants and increasingly they are emerging as leaders. They are transformed from bread earners to credit earners for the households. A major catalyst in this revolution is financial literacy. Now when a woman understands how interest is calculated, she will no more be fooled or manipulated by the exploitative terms. Once she learns how to use the ATM card or net banking, she will not rely or be dependent on others. Once she understands the importance of insurance schemes, she will plan not only for the emergencies but for resilience and for long term. But what excites me the most is the shift in aspiration. The women today, the rural women today, are no more passive beneficiaries. Once upon a time when they feared debt, now they are asking for business loans. Now they are asking for investment plans. The SHG women are moving away from consumption needs to capital needs. The youth are seeking startup ideas and not just subsidies. This transition from passive beneficiaries to active economic change players is what makes rural India resilient and future ready. And this conclave comes at a very crucial point. As in this financial year's budget announcement, the Government of India has announced the Rural Prosperity and Resilience Program, in which we envision to bring in a whole package of innovative financial products to cater to the realities of the rural India. This conclave is not just a celebration of what we have achieved in the past 10 years, it is a platform for collective reflection and direction. Over the next 3 days, what we envision is to revisit on the lessons we have learned from our past, to analyze the gaps which are still remaining, and to co-develop strategies for the future. Let me end by saying, it's said that what gets measured gets improved. What gets discussed gets transformed. So let us use this space not just to review what we have achieved, but to imagine what comes next. Because at its heart, financial inclusion is not only about access, it's about agency, it's about voice, and it's about freedom. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Monica, for sharing the objectives of this national conclave. May I now request Ma'am Smriti Sharan, IS, Joint Secretary, Ministry of Rural Development, to present a snapshot of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, and Goa over the last 10 years. Ma'am, please. आदरणीय मुख्यमंत्री सर डॉक्टर प्रमोद सावंत,
आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट श्री सदानंद तलवाड़ी जी, Mr. Sanjay Goyal, Secretary RD Goa State, my colleagues Dr. Monica, Mr. Raman Vadra, and several other CEOs and other partners who were there in the audience. Shri Shirodkar ji, SMD Goa, the entire Goa State team, and esteemed participants. It's an honor and a privilege to be addressing all of you to this 2.5-day financial inclusion conclave. Before I begin, respected CM sir, thank you very much for being such a gracious host and for allowing us to have a manthan, Atmachintan of sorts in this beautiful state called Goa. We're extremely happy to be here, and I think that the cool sea breeze and the intellectually stimulating conversation will take us a very long way in working towards the future of NRLM. Next please. आप में से कई लोग, क्षमा करें मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात करूंगी because it's like a mixed crowd. आप में से कई लोग तो भिज्ञ होंगे NRLM की इस पूरी जर्नी के लिए, पर कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, इसलिए एक स्नैपशॉट ऑफ NRLM जर्नी बताना बहुत आवश्यक है। NRLM अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था जो कि स्वर्ण जयंती, रोजगार योजना और ड्वाक्रा जैसे पुराने कार्यक्रमों के से सीख करके आगे बढ़ा था। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हमने की थी, वो इस पिलर पे इस फाउंडेशन पे बेस था that the poor are not inherently poor. They have an innate ability to come out of that poverty. What they need is a big push or a small push, and also some hand-holding and psychological support. So, sir, इससे पहले जो भी कार्यक्रम होते थे, वो उन लोगों को ग्रांट देते थे, वन टाइम ग्रांट देते थे या कोई और सब्सिडी देते थे। NRLM ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, लोगों को लोन देंगे और उनकी रिपेमेंट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, and we will tell them that there is nothing free in this world. आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ हासिल होगा। Therefore, we launched this program, और ये कार्यक्रम कम से कम 5 बहुत ही ठोस स्तंभों पे आधारित है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम साधारण भाषा में कहते हैं, स्वयं सहायता घटों का संगठन, और उनको फिर एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में संगठित करना, जिनको कि हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन और संकुल सम कहते हैं, दैट इज क्लस्टर लेवल फेडरेशन। एक बार जब हम उनको गठित कर देते तो हम उनको फंड्स इन परपेचुटी देते हैं, जिसको कि हम रिवॉल्विंग फंड्स कहते हैं, और उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी स्टार्ट होती है। वही महिला जो सेठ साहूकार के सामने जाकर के बहुत ही बेतुके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती थी, वो अचानक उसकी एजेंसी वापस आती है और वो एक अपने ही समान लोगों के बीच से लोन ले सकती है स्वाभिमान के साथ, और एक ढंग के इंटरेस्ट रेट पे उसको वापस भी कर सकती है। एक बार उसकी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स और इंडिजेंट नीड्स पूरे होते हैं, फिर हम उसको लाइवलीहुड की तरफ ले जाते हैं। हम उसको बोलते हैं कि एक कोई लाइवलीहुड चालू करिए, जिससे कि आपके पास अपना पैसा अर्जित हो सके, धन अर्जित हो सके। उसमें हम एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड्स करते हैं। ग्रेजुअली वी टेक देम टू नॉन फार्म लाइवलीहुड्स, पर हम इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि जिस देश की जनता स्वस्थ है, तभी देश स्वस्थ और प्रगति के रास्ते पे चलता है। Which is why we make sure that we work on the nutritional aspects and health aspects of SHG women. First 1,000 days of a child, the nutritional requirement, lactating mother's iron requirements, a growing population, psychological and social needs, we invest in all of it, which is why इस कार्यक्रम में फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश, जेंडर, सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत बड़े स्तंभ में और काफी मायने रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये NRLM जब हमने सन 2011 में इस नए परिमार्जित रूप में स्थापित किया, तो ये एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट था। हम पहले एक कुछ चुनिंदे जिलों या ब्लॉक में कुछ कैपिटल सब्सिडी या कुछ कोई एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ फार्म इम्प्लीमेंट दे करके
एक वन टाइम ग्रांट देकर के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन नहीं, अब हमने कहा कि हम सैचुरेट करेंगे और गांव से गांव मिलके सैचुरेट करेंगे और इन्हीं महिलाओं के बीच में सोशल कैपिटल बनाएंगे। कोई क्यों बाहर से आकर के हमें सिखाए कि वित्तीय स्वायत्तता क्या होती है या बैंकिंग क्या होती है। इसलिए हमने ना केवल स्वयं सहायता घरों को स्थापित किया, हमने उनको ये भी सिखाया कि वो अपने आप को एक दूसरे के साथ मिलके कैसे प्रगति के रास्ते पे ले जाए। इसलिए हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, हमारे पास पशु सखी होती है, कृषि सखी होती है, बैंक सखी होती है। ये सब इन्हीं गांव से विकसित होकर के अपने एक्सपीरियंसेस हासिल करके इस रास्ते चलती हैं। Therefore, we talk of social capital and robust community institutions. Inclusion सबसे बड़ी बात है। हम किसी भी दो लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करते। हर परिवार की महिला स्वयं सहायता समूह की मेंबर होने के काबिल है और वो एलिजिबल होती हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया वो था कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। हमने उनको ना केवल रिवॉल्विंग फंड्स एज फंड्स इन परपेचुइटी दिए, जिसको वो संजो के रखती हैं, उसका लेन देन करती हैं, उसका परिचालन करती हैं, पर उसके आगे हमने उनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स दिए, हमने उनको बैंक से जोड़ा, जैसा कि मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी। और उसके बाद जब उन्होंने वित्तीय स्वायत्तता हासिल कर ली, तब हमने उनको बताया कि अब आप पूरी तरीके से परिपक्व हैं अपने लाइवलीहुड को स्टार्ट करने के लिए। एंड वी गेव देम शोड देम द पाथ टू लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट प्लीज। ये स्लाइड्स आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ये हमारा जिसको हम कहते हैं जमा पूंजी है कई सालों की। 10 crores rural households have been tied into 91 lakh SHGs. Honorable CM sir, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था कि हम 10 करोड़ हाउसहोल्ड्स को स्वयं सहायता समूह में गठित करें, और ये हमने पिछले 2 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव किया। हमारे पास 5 लाख प्राइमरी लेवल फेडरेशंस हैं और 32,000 से ज़्यादा हमारे पास क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। दूसरी तरफ हम आपको वो सपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसा कि हमने बोला है कि हम ज़मीनी स्तर से ही लोगों को तैयार करते हैं, इसलिए हम स्वयं सहायता समूह, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर्स, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स और फिर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के रास्ते नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी पे जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो सीढ़ी है ये एक्चुअली जो हमारा अथक प्रयास है, जो हमारे कम्युनिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सपोर्टर्स हैं, वो जो इसमें स्थापित करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, मैं एक स्तर पे तो नहीं जाऊंगी, पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम घट बनाते हैं, उनका सेविंग बैंक खाता खुलाते हैं, उनको बताते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो थोड़े से सेटल होते हैं उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्लान्स बनाते हैं, इन कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स देते हैं, जिससे कि स्वयं सहायता समूह अपना कोई मिलके लाइवलीहुड प्रैक्टिस कर सकता है या इंडिविजुअली कर सकता है, और धीरे धीरे हम उनको छोटे छोटे बैंकिंग लोन्स प्रदान करते हैं। माना जाता है कि 36 से 40 महीने में वो एक सीरीज ऑफ बैंकिंग क्रेडिट ले चुके होते हैं, उसके बाद देन दे टेक सक्सेसिव डोजेस ऑफ कैपिटल। और इतना सब काम करने के बाद जो उभर के हमारी दीदियां आती हैं वो है जिनको कि आप राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे बेहद कॉन्फिडेंस के साथ माननीय प्रधानमंत्री से बात करते हुए देखते हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री से बात करते हुए देखते हैं, ड्रोन उड़ाते हुए देखते हैं, 26 जनवरी में सबसे पहली रो में बैठ करके परेड को सलामी देते हुए दिखते हैं। यही एक उनकी पूरी एक जर्नी है, बट इट इज बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग जर्नी सो फार सर। नेक्स्ट प्लीज। ये एक स्नैपशॉट है हमारे अभी तक के सारे अचीवमेंट्स का। सारे में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो कैपिटलाइजेशन सपोर्ट है 57,000 करोड़ और बैंक लिंकेज है ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़, इस पर गौर करिएगा। इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पूरे कार्यक्रम में। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी फाइनेंशियल, क्योंकि ये वित्तीय कॉन्क्लेव है, इसलिए एक बार मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि आज हमने कुछ फंड्स दे दिए और जादू की छड़ी चल गई और सब कुछ ठीक हो गया। ये एक बहुत ही पेनस्टेकिंग कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग का प्रोसेस है।
जहाँ पे हम उनको बैंक लिंकेज देते हैं, उनको वित्तीय साक्षरता देते हैं, उनको डिजिटल फाइनेंस सिखाते हैं विच इज डोर स्टेप बैंकिंग थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट डिवाइसेस। हम उनको रेजिलियंस सिखाते हैं बाय वे ऑफ टेलिंग देम अबाउट वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हम सक्षम सेंटर्स खोलते हैं आरबीआई और बाकी वित्तीय संस्थानों की मदद से, जहाँ पे विच इज लाइक अ बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर देम, वेयर वी नॉट ओनली रिजॉल्व देयर क्वेरीज, वी आल्सो रिजॉल्व देयर issues that they may have with the bank or with any product. And then gradually हम उनको enterprise finance, which is individual or FPO based finance, but we give them finance for larger, higher order enterprises. Next please. कैपिटलाइजेशन टू एसएचजी मेंबर्स, ये हमारी अभी तक की जर्नी है जो हमने उनको फंड्स दिए हैं 57,000 करोड़, और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि 5.68 lakh are the individual loans that we've provided to the SHG women so far, and the total amount that we've given is more than 5,800 crores, which is a significant number, but not to say that we can rest at that. Sir, we are here to see how we can make higher order enterprises in our next finance commission cycle, which is about to begin next year. माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने अब की बार हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको कि उन्होंने रूरल प्रॉस्पेरिटी और रेजिलियंस नाम से बजट अनाउंसमेंट दिया है। तो अभी तक हम केवल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करते थे, अब राष्ट्र ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि न केवल हम स्वयं सहायता समूह बल्कि लैंडलेस फार्मर्स, यूथ और अनस्किल्ड लेबर के साथ भी काम करके देश को 2047 के पथ पे अग्रसर करें। Next please. Sir, this is the slide that I wanted to tell you. For every rupee that we gave to the SHG member, they leveraged it 20 times over. 57,000 करोड़ को उन्होंने करीब 11 लाख करोड़ के रूप में बैंक से leverage करके क्रेडिट लिया, and this is a success story that even the world over academicians are very surprised about. So this is quite an achievement. ना केवल that, हमने regional disparity in incomes, in money available भी हमने इस कार्यक्रम के तहत कम किया है। 2013 में आप देख सकते हैं कि ये जो states हैं, which were relatively poorer states, they just had 10% of share in the loan, और 10 साल के अंदर उन्होंने 31% से ज़्यादा का लोन शेयर स्थापित किया है, which also shows that the distribution of ready money and capital has increased. Next please. ये हमारे financial services का बास्केट है। ना केवल हम लोन देते हैं, हम इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात करते हैं, और डोर स्टेप बैंकिंग बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बहुत पॉपुलर है। और आप सब को जानकारी होगी कि कोविड के समय में हमारी बीसी सखी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी टू प्रोवाइड रेडी मनी टू पीपल हु वर नॉट एबल टू ट्रैवल टू बैंक और वर नॉट अलाउड टू। नेक्स्ट प्लीज। तो ये तो हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, हाँ, बैक टू द प्रोग्राम। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर था, बट जैसे कि कहा जाता है कि इफ इट कांट बी मेजर्ड you can't really say what your success has been. Sir, World Bank की 2019 की ये स्टडी थी, और उन्होंने across the country samples लेकर के ये बात स्थापित की through their report that income increase was over 19% over the base amount in the rural India. Informal loans, सेठ साहूकार से जो हम loans लेते थे वो 20% से घटे, household savings 28% बढ़ी, जिसका कि मायने है कि महिलाओं ने बचत एक बहुत अहम तरीके से अपने जीवन में अग्रसर की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का 4% से बढ़ा। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू अदर गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, और महिलाओं का परिवार में और गांव में और समाज में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि उनकी एजेंसी को ज्यादा गति मिली। नेक्स्ट प्लीज। अब हम चलते हैं गोवा की उपलब्धियों पे। सर, इफेक्टिवली गोवा ने पिछले 4 से 5 साल में बहुत तेज रफ्तार से काम किया है, और इतने कम समय में उसने जो भी काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। हमने
3,250 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए और करीब 43,000 हाउस होल्ड्स को इसमें पिरोया है। विलेज ऑर्गेनाइजेशंस 210 हैं और क्लस्टर लेवल फेडरेशंस 18 हैं। और इन सब चीज़ों के माध्यम से, बैंक लोन और कैपिटलाइजेशन के माध्यम से, ना केवल गोवा SRLM ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जनरेट किए, they've also added to livelihood and entrepreneurship for a total of 23,000 SHG members who are engaged in farm as well as non-farm sectors. Next please. सर, आप और आपका राज्य बधाई के पात्र हैं कि जैसे ही LIC और भारत सरकार का साझा अनाउंस हुआ, गोवा was the first state to sign a formal MOU with LIC। और आपके पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस कॉन्क्लेव की कंक्लूडिंग डे LIC के साथ एक फॉर्मल MOU फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री करेंगे। सर, यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम आदि में भी बहुत प्रगति हुई है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 170 स्वयं सहायता समूह को एम्पैनल किया गया है और वो फूड सर्विसेज ऑपरेट करती है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही विकसित SRLMs जैसे कि बिहार हैं, वो भी ये काम करते हैं, उन्होंने दीदी की रसोई बनाई है। पर गोवा राज्य जो कि इंटेंसिव वर्क फॉर द लास्ट 4 years कर रहा है, उसने भी अगर इतना बड़ा कार्य किया है तो ये भी सब बहुत बड़ी काबिलियत है और सभी बधाई के पात्र हैं पूरी गोवा की SRLM। और इस इंटरवेंशन के तहत 14 कैंटीन have been located in various government departments and which are fully run by SHGs। आपको ये पता होगा कि यदि स्वयं सहायता समूह की दीदी खाना बना के कहीं पे दे रही है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, समझ लीजिए माँ के हाथ का खाना ही मिल रहा है। So that's the guarantee that our didis carry। Next please। मैं वैसे तो सक्सेस स्टोरी सर इतनी होती हैं कि पन्ने भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताती हूँ। श्रीमती श्यामल गवास जो कि महालक्ष्मी SHG से हैं, और उन्होंने ना केवल खुद को सशक्त किया बल्कि उन्होंने कम से कम 250 स्वयं सहायता मेंबर्स को बिजनेस प्लान्स बनवाया और उनको फाइनेंशियल हेल्प मुहैया करवाई। वो फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में इक्वली एक्टिव हैं और वो खुद कैश्यू, अरेका नट, मारीगोल्ड फार्मिंग जैसे खेती के काम में engaged है। और alongside she also promotes bakery, catering and eco-friendly areca nut plate making। Her work extends to organizing insurance camps, spreading awareness on financial security। तो सर आप देख सकते हैं कि एक महिला फार्म, नॉन फार्म लाइवलीहुड से लेकर के महिलाओं को सशक्त करने से लेकर के इंश्योरेंस और बैंकिंग प्रोडक्ट्स तक एक पूरा कैनवस ऑफ एक्टिविटी करती है, which is quite commendable। And therefore she is supported by these outcomes। 250 entrepreneurs and almost 5 crore of loans have been facilitated। She's by her own effort facilitated 15 to 20 insurance camps। आज के समय में जहाँ पे वेदर के वेगरीज बढ़ रहे हैं और बाकी अनसर्टेनिटीज भी जीवन की बढ़ रही हैं, these insurance camps hold a lot of value। Next please। सर, आने वाले समय में हम गोवा SRLM के साथ मिलकर के इकट्ठा काम करना चाहते हैं, जहाँ की 75% मेंबर्स इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू फार्म एंड नॉन फार्म में काम करें। हम स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज डेवलपमेंट की भी बात करना चाहते हैं। मेरे साथी रमन वाधवा जी ने अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि सही दिशा तो हायर ऑर्डर एंटरप्राइज की है और बड़े लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस को बनाने की है। इसलिए सर हम गोवा में कम से कम अगले 6 महीने में कुछ चुनिंदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हायर ऑर्डर एंटरप्राइज के पद पे ले जाना चाहते हैं। सर, सारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड शुड बी ऑल इंक्लूसिव, जहाँ पे हर प्रकार की एक्टिविटी हो, लोन फैसिलिटी हो और वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। हम सर एंटरप्राइज लोन प्रोडक्ट्स कस्टमाइज बनाना चाहते हैं जो कि गोवा की काश्तकार और गोवा की महिलाओं के लिए सूटेड हो, और इसमें भी हम बैंकिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। सर, वी वांट टू मेक डेडिकेटेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सप्लोर पार्टनरशिप फॉर मेकिंग सुपरमार्केट्स। बल्कि यही नहीं सर, हमारी तो ये भी विश है
क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर है कि हम बाकी राज्यों के भी दीदियों के बनाए हुए प्रोडक्ट गोवा राज्य के माध्यम से उनको वर्ल्ड की एक विंडो दिखा सके. सो वी वुड लाइक कोलैबोरेशन ऑफ अदर SRLM प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दैट गोवा brings, whether it's in terms of malls or in terms of an online portal. सर, हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज हो, इंक्लूडिंग हेल्थ, हाउसहोल्ड एंड ऑल्सो कैटल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज आजकल बहुत कस्टमाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है. और सर, यदि हम गोवा के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को GI टैग करके उसको एक स्पेशल विश्व में स्थान दे पाए तो दैट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. And respected CM sir and Honorable MD sir, we seek your guidance, your blessings, and also the guidance to walk this path. Thank you very much, sir, for having us.